Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, I Faiza Tariq welcome you all in the lecture number 36 of Computer Communication and Networks. Dear students, in the previous lecture we have started to learn about TCP and UDP, connectionless and connection-oriented services. Students, we should have to know or with the more in more detail that what are these connection oriented or connectionless services. As we know that connection oriented services are the reliable services and the connectionless services are unreliable. Students, internet provides two services to its distributed application. When we want to distribute some application, we need some network. So for the transfer of data, from the transfer of applications over a network, we need two kind of services that we have already discussed. That is, they are the connection oriented reliable services and the connectionless unreliable services. Students, connection oriented reliable services क्या करती हैं? We know that it guarantees that data transmitted from a sender to a receiver will eventually be delivered to the receiver in order and in its entirety. Connection-less services are unreliable. It does not make any guarantee about eventual delivery. Why? Because distributed application makes use of one or the other, but not both of these two services. या वो connection oriented reliable services को use करेगा या वो connection less unreliable services को use करेगा. So thus internet is an infrastructure that is used in which new applications are being constantly invented and deployed. So connection oriented services में क्या क्या होता है? We should have to know कि जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात कर रहे हैं तो हम TCP की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र होगा. अब ये रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र जो होगा ये कैसे होगा? जैसे हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि सेंडर जो है जब पैकेट को भेजेगा तो वो वेट करेगा किसका? फॉर द एक्नॉलेजमेंट. जब उसको नेक्स्ट वाले डाटा की एक्नॉलेजमेंट आएगी तो नेक्स्ट डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा. इसी तरह उसको अगले वाले जो है वो डाटा के लिए एक्नॉलेजमेंट आएगी. सो ये डाटा रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र क्या है कि जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी नेक्स्ट डाटा को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा. और अगर समटाइम्स कुछ टाइम पीरियड के अंदर हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होती एज वी हैव स्टडीड इन द डाटा फ्लो लेक्चर, तो उस केस में क्या होगा कि वो रीट्रांसमिट करेगा. हेयर वी शुड हैव टू फ्लो कंट्रोल द फ्लो. Sender won't overwhelm receiver. How we will control the flow? We will control the flow through an acknowledgement. जब आपको डाटा ट्रांसफ़र रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है तो देन जो है आपका सेंडर दे वोंट ओवरहेल्प रिसीवर. कंजेशन कंट्रोल होगा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अंदर. सेंडर जो है वो स्लो डाउन करेगा सेंडिंग रेट को. जब आपका नेटवर्क थोड़ा कंजेस्टेड होता है, जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है वो क्या करती है? वो उस कंजेशन को कंट्रोल करती है. किस तरह से? उसका जो स्लो डाउन कर देती है सेंडिंग रेट को. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशंस हैं दे आर HTTP हम क्यों यूज़ करते हैं? वेब होस्टिंग के लिए, वेब सर्फिंग के लिए. अगर हमें ट्रांसफ़र करना है फाइल को तो हम FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे. अगर हमें रिमोटली लॉगिन करना है तो हम टेलनेट यूज़ करेंगे. और ईमेल भेजने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे. Students, in the next week lecture, we will study about all these protocols और ये application layer के protocol हैं जो application layer पे deal होते हैं और we should have to know that what is the functionality each of them. So in the next week lecture, we will study about the protocols. UDP is a connectionless service. UDP transport data unreliably between hosts. So they are the connectionless, unreliable भी है. Transmit message. They are called the user datagram.
and it provides no software checking for message delivery. There is no as there is no software checking for message delivery, so that's why we are saying this is an unreliable. So does not resemble incoming message, so they use no acknowledgement. UDP is a simple protocol that exchanges datagram without acknowledgement or guarantee delivery. So user datagram protocol जो है उनकी जो applications हैं they are the multimedia, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है, डोमेन नेम सिस्टम के लिए, इंटरनेट टेलीफोनी के लिए, और इसको हम जो है वो कनेक्शन लेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं. It does not add anything to the services of IP except to provide process to process communication instead of host to host communication. So यहाँ पे it performs a limited error checking. ये जो है वो प्रॉपर एरर चेकिंग नहीं प्रोवाइड करता, बट इट इज़ अ फास्ट एज इट इज़ अ कनेक्शन लेस. सो कुछ वेल नोन पोर्ट्स हैं जो यहाँ यूज़ होते हैं. Some of them used by both UDP and TCP as well. Like जो है अगर हम कहते हैं कि आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र जो है वो सॉरी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP यहाँ पे अगर यूज़ हो रहा है तो वो पोर्ट नंबर जो है वो 161 और 162 यूज़ करता है. इको के लिए जो है वो 7 पोर्ट नंबर यूज़ हो रहा है, और जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए RPC के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए जो है वो 111 पोर्ट नंबर जो है वो यूज़ होता है. सो जो है इसके अलावा UDP का एक फिक्स साइज हेडर होता है दैट इज़ ऑफ 8 बाइट्स, और वी शुड हैव टू नो कि किस तरह से जो है वो क्यूइंग होती है डाटा के अंदर क्लाइंट साइड में. जब प्रोसेस स्टार्ट करता है रिक्वेस्ट ऑफ पोर्ट नंबर को फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, द पोर्ट वांट्स टू कम्युनिकेट विद सेवरल प्रोसेसेस, सो इट ऑब्टेन्स ओनली वन पोर्ट नंबर एंड वन आउटगोइंग क्यू एंड वन इनकमिंग क्यू, क्योंकि जब क्यू फंक्शन जो है वो के थ्रू हमारा प्रोसेस जो है वो रन करता है. जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो क्यू जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो UDP जो है वो रिमूव करता है मैसेज को वन बाय वन आफ्टर एडिंग UDP हेडर, और उसके बाद उसको डिलीवर कर देता है IP पे. स्टूडेंट्स, here are the some differences between the TCP and UDP. जैसा कि आपको पता है कि UDP कब सूटेबल है फॉर जब स्पीड मैटर करती है. सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन विद लिटिल कंसर्न फॉर फ्लो एंड एरर कंट्रोल. UDP सूटेबल है फॉर प्रोसेस विद इंटरनल फ्लो एंड एरर कंट्रोल में, जिसमें जिस तरह अगर हमें ट्रिवियल करना है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को तो उसमें हमें फ्लो और एरर कंट्रोल जो है वो इंक्लूड करने पड़ते हैं. UDP जो है वो SNMP में यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज फॉर सम रूट ऑफ अपडेटिंग प्रोटोकॉल्स, जबकि TCP जो है वो सप्लाई करता है एक वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन एंड यूजर्स एप्लीकेशन. ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, ये रिलायबल है, डिवाइड करता है आउटगोइंग मैसेज को इन द सेगमेंट्स, और रीसेंड करता है एनीथिंग विच इज़ नॉट रिसीव्ड. सो TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और if it is a connection oriented, that's why we are saying that it is a reliable protocol. कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, ये एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन टू TCPs टू सेंड डाटा. सो TCP also uses flow and error control mechanism at the transport level. सेंडिंग प्रोसेस जो होगा TCP के अंदर वो लेट्स सपोज प्रोड्यूस करेगा अगर वायर टू द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, और रिसीविंग प्रोसेस जो है वो उसको कंज्यूम करेगा, वो उसको रीड करेगा. सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस जो है दे मे नॉट राइट टू और रीड डाटा एट द सेम स्पीड. TCP नीड्स, इसके लिए जब TCP को बफर की ज़रूरत पड़ेगी. सो दे आर टू बफर सेंडिंग एंड रिसीविंग वन फॉर ईच डायरेक्शन. यहाँ पे जो है वो सेंडिंग साइड में आप बफर यूज़ करेंगे जिसमें डिफरेंट चैम्बर्स होंगे, राइट, और उसके लिए एक्सट्रीम डिलीवरी होगी. सो इट इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल. TCP is a connection oriented protocol. It performs three-way handshake. It provides provision for error detection and retransmission
एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो वो उसको रीट्रांसमिट करेगा. मोस्ट एप्लीकेशन यूजेस TCP फॉर द रिलायबल एंड गारंटीड ट्रांसमिशन. On the other hand, what is a UDP? UDP is unreliable protocol. Why it is unreliable protocol? Because it is a connectionless protocol. डेफिनेटली स्पीड मैटर ओवर हेयर. जब स्पीड मैटर करेगी तो वो आप UDP यूज करोगे. इट इज़ अ फास्टर देन TCP. वाई? बिकॉज TCP परफॉर्म्स थ्री वे हैंडशेक बट देयर इज नो कनेक्शन नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड ऑल द टाइम्स. डाटा जो है वो कनेक्ट होता है, ट्रांसफर होता है ओवर कनेक्टेड नेटवर्क. No proper sequencing of data unit. It is suitable for applications where speed matters more than reliability. जब आपको reliability का issue होता है, जब आप guaranteed transmission चाह रहे होते हो तो आप कहते हो TCP protocol use करें. लेकिन जब आपको speed matter करती है other than the reliability, then you will use TCP. Students, we have learned little bit about the transport layer in today's lecture. In the next week lecture, we will study about application layer protocols. Thank you very much. Stay safe. Allah Hafiz.